Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online steel structure series. This is the 13th video lecture and the second one from the weld connection topics. In the previous lecture, we have discussed what is basically a weld connection and what are the essential components of a weld connection. How do we, what are the different types of welding, and then what are the basic parameters that we are interested in designing a weld connection. So basically there were three parameters we need to find out. First one was the shear strength of the weld, second one was the shear yield strength of base metal, and the third one was the shear fracture strength of the base metal. We have up till now we have done two problems. Those were basically the analysis, and now we're gonna cover the design portion of a weld connection. It's quite simple as compared to the bolt connection. So the first thing that we need to figure out is what should be the minimum size of the weld. In the previous problem we were given with the problem that you need to use the specific width of the connection, as in the problem 7.11 we were given that the thickness of the weld should be 3 by 16 inches. However, in the design part we need to decide that the width of the weld connection by ourselves. So what are the parameters and what are the guidelines from the AISC table? As per AISC manual, this is the table that we're gonna use as the guideline to find out the minimum size of the weld. So if the thickness of the thinner part join, let's say if there are two portions that we need to join, one of it is this one and another one is this, and we need to connect these. How do we decide that what should be the minimum width of the weld connection? So basically we're gonna look at what is the minimum thickness of the portions to be connected. Let's say if this is the one on first part and this is another portion, and we need to connect these, we need to find out which one has the minimum thickness. ठीक है, जिसकी थिकनेस सबसे कम होगी हम उसको चूज़ करेंगे. सो जितनी थिकनेस होगी उसके हिसाब से हमें we need to use the width of the weld. So let's say if the thinner part joined, it has the thickness up to 1/4 inches. जो सबसे जिसकी thickness कम है, अगर उसकी thickness 1/4 inches है, then we gonna use the size of the fillet weld up to 1/8 inches. That mean अगर एक let's say एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, और आपने इनको कनेक्ट करना है फिलेट वेल्ड से. सो अगर किसी भी प्लेट की इनमें से जिसकी कम थिकनेस है, उसकी थिकनेस 1/4 इंच है या अप टू 1/4 इंच है या उससे कम है, तो हमें फिलेट किस साइज़ का यूज़ करना है? 1/8 उसकी विड्थ होनी चाहिए. व्हाट इज़ 1/8? दिस थिंग. ठीक है, ये जो आप इसको कनेक्ट करोगे इस चीज़ से, ये एक छोटा सा जो ऑब्वियसली ये आपके पास ये पूरा फिलेट ये कनेक्शन बनेगा. सही है. सो आपको अगर मैं इसी को थोड़ी से इनलार्ज करके बना दूं तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा. तो ये जो विड्थ होगी, दिस इज़ द विड्थ ऑफ द ये साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड. ठीक है, दिस इज़ द थिकनेस, हम इसको थिकनेस भी प्रोनाउंस करते हैं. सो 1/8 यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास ये जो पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं, अगर उनकी थिकनेस 1/4 से हाफ के दरमियान में, जो छोटे वाला जिसकी जो सबसे थिन है उसकी थिकनेस अगर 1/4 से 1/2 के दरमियान में है, तो देन वी गोना यूज़ दिस अमाउंट ऑफ थिकनेस एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जा रही है तो हमें जो साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड है, दैट मीन्स हमें जो फिलेट वेल्ड की थिकनेस है वो भी बढ़ाते जाना है. ठीक है, हम आगे प्रॉब्लम करेंगे और आपको उधर से आइडिया हो जाएगा. सो दिस इज़ द मिनिमम थिकनेस, कि मिनिमम थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, एंड देयर शुड बी लिमिट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑल्सो. ठीक है, मिनिमम तो चलो कम से कम इतनी रखनी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इफ़ द थिकनेस, फिर से वही बात है, थिकनेस किसकी? थिकनेस जो थिनर पार्ट ज्वाइन हो रहा है. ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि लेट्स से अगर ये एक पोर्शन है और दूसरा ये पोर्शन है, ये दो पार्ट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है. तो जो इनमें से थिनर पार्ट है, अगर उसकी थिकनेस इफ़ its thickness is less than 1/4, then the maximum weld size should be equal to thickness of the part. That means कि आपके पास अगर इसकी thickness कोई जो इनमें से जो parts, दोनों parts हैं, इनमें से जो thinner part है उसकी thickness if it is less than 1/4, तो उसकी weld size कितना होना चाहिए? वो जो weld का size होना चाहिए उसकी width कितनी होनी चाहिए? It should be equal to the thickness of the part. ठीक है, कि लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि एक ये पोर्शन है, एक ये है. ठीक है जी, और इसमें से मैं अगर लेट्स से इफ़ आई गो विद इसकी थिकनेस, इस पार्ट की थिकनेस है 1/6. ठीक है, और इसकी मैं बोल देता हूँ हाफ. ठीक है, ये दो पार्ट्स इनको आपने ज्वाइन करना है. मिनिमम का तो आपको पिछले टेबल में पता चल गया, बट मैक्सिमम कैसे करोगे? अब इन दोनों पार्ट में से मिनिमम थिकनेस किसकी है? इसकी है. ठीक है, और अब ये थिकनेस
इफ़ इट इज़ लेस देन 1/4, ये चूँकि 1/4 से कम है, ठीक है, मतलब 6 है, मतलब ये कम होती जा रही है, देन द मैक्सिमम वेल्ड साइज, मतलब जो वेल्ड साइज है वो किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस ऑफ पार्ट के, जितनी उस पार्ट की थिकनेस होगी। दैट मीन्स ये जो आप वेल्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, ये जो आप वेल्ड यूज़ करेंगे इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ भी उतनी होगी जितनी पार्ट की थिकनेस है। दैट मीन्स 1/6 ही यूज़ करेंगे, मतलब जो थिनर पार्ट है उस थिकनेस जितनी या उस साइज जितनी आपने यूज़ कर देनी है उसकी विड्थ ऑफ द वेल्ड। एंड इफ़ द थिकनेस इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, अगर इनमें से, अगर ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और इनमें से कोई भी जो थिनर पार्ट है अगर उसकी थिकनेस 1/4 से है, ठीक है, लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि हम ये कह देते हैं कि 1/4 एंड इफ़ वी से दैट 1/5 है, एंड इफ़ वी से दैट 1/6, सो एंड बल्कि ये होना चाहिए कि दो जिनमें से पार्ट की थिकनेस अगर वो हाफ से ज़्यादा हो जाए, एक को मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, और एक को मैं ये कर देता हूँ कि लेट्स से मैं 5/8 कर देता हूँ, ठीक है, ये हाफ से भी थोड़ी ज़्यादा होगी और ये हाफ हो गई है, तो जो हाफ वाली होगी उसकी फिर थिकनेस हम कितनी रखेंगे, या हम इसमें से जो ज़्यादा वाला होगा, देन मैक्सिमम वेल्ड साइज वुड बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ पार्ट, जो पार्ट की थिकनेस होगी उसमें से -1/16 कर देंगे, ठीक है। ये आगे एक प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपने वेल्ड साइज़ की कितनी रखनी है, आपने वो उसको सेटिस्फाई करना है इस लिमिट्स को, ठीक हो गया, कि अगर थिकनेस जो थिनर पार्ट की उसकी 1/4 से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे हाफ हो गई थी, तो मैक्सिमम वेल्ड साइज़ कितना हो जाएगा, जो थिकनेस ऑफ पार्ट है, ठीक है, और उसमें से हमने 1/16 माइनस कर देना है, तो ये आपके पास क्लियर कट हो जाएगा। मतलब ये एक ये आ गया हमारे पास, हाफ आ गया, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ 5/8, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट की थिकनेस कितनी है, 1/4 से ज़्यादा है। अब इनमें से कम वाली थिकनेस कौन सी है, हाफ है। अब इस हाफ में से कितनी थिकनेस माइनस कर देनी है, -1/16 कर देंगे, तो इतना आपने वेल्ड का साइज़ यूज़ कर देना है, सही है जी। उसके अलावा लेंथ ऑफ द वेल्ड, अभी तो हम बात कर रहे हैं विड्थ ऑफ द वेल्ड, बट लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ ये होती है कि ये जैसे दो पार्ट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया तो ये विड्थ ऑफ द वेल्ड है, बट आप इधर अगर खड़े होंगे तो आपको जो दूसरी साइड से नज़र आएगा, अगर आप इधर से देखेंगे तो इसका व्यू कैसे नज़र आएगा कि आपके पास लेट्स से ये एक प्लेट है, ठीक है, और उसको मैंने इस बड़ी गज़ेट प्लेट से, मैं अगर इस बड़ी गज़ेट प्लेट बना देता हूँ, इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है इधर ये वेल्ड के साथ, ये वेल्ड हो गया, तो इस वेल्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दिस इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। इसका भी ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के मिनिमम इतनी लेंथ ऑफ द वेल्ड होनी चाहिए। तो हाउ डू वी डिसाइड द लेंथ ऑफ द वेल्ड, इट शुड बी 4 टाइम्स विड्थ ऑफ द वेल्ड, मतलब जितनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए, विड्थ ऑफ द वेल्ड होनी चाहिए, या फिर विड्थ ऑफ द मेंबर की जितनी विड्थ है उसके हिसाब से बराबर होनी चाहिए। मैं लेट्स से कि वेल्ड ये है 4 टाइम विड्थ, तो मतलब ये जो जितनी विड्थ थी उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, और विड्थ ऑफ द मेंबर ये हो जाएगा कि मैं ये कह देता हूँ कि एक अगर यूँ गज़ेट प्लेट है और इसको मैंने यूँ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो मेंबर जिसको ज्वाइन किया हुआ है इसकी विड्थ के बराबर होनी चाहिए कम से कम। मतलब ये जो अगर मैं इधर वेल्ड लगाता हूँ ये, ठीक है, ये जो मैंने वेल्ड अगर इधर में लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया, ठीक है, तो इस मेंबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, या तो 4 टाइम विड्थ ऑफ द वेल्ड या विड्थ ऑफ द मेंबर, मतलब ये जो मेंबर ज्वाइन कर रहा हूँ उसकी विड्थ के बराबर, उस प्लेट की विड्थ के बराबर, गज़र प्लेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो दीज आर द गाइडलाइंस। और उसके बाद एक और चीज़ है कि हाँ आपने वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या यूज़ करनी है, ठीक है, क्या मेंबर हो तो उसकी वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब उसकी कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला यूज़ करना है, ये सारे पैरामीटर्स आप डिसाइड करोगे जब आप डिज़ाइन करने लगोगे। एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें गिवन होगी, और डिज़ाइन के लिए आपने खुद से डिसाइड करना है, आपने खुद से डिसाइड करना है। तो अगर जो बेस मेटल जो यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ इफ़ इट इज़ लेस देन 60 KSI तो आप या E60 यूज़ कर लो या E70 यूज़ कर लो, और अगर उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ 60 KSI से ज़्यादा है दैट मीन्स फिर आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ वाला आपको इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ेगा, E80 या उससे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। इस तरीके से करेंगे। हमारे पास आ जाता है जी पहला प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अ कनेक्शन ऑफ द टाइप, ठीक है, हमारे पास जैसा प्रॉब्लम 1 था 7.11 मस्ट रेजिस्ट अ सर्विस डेड लोड, उसने डेड लोड कितना रेजिस्ट करना है, अब 9 केप, और उसका लाइव लोड कितना है 18 केप्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्हाट टोटल लेंथ ऑफ 1/4 इंच फिलेट वेल्ड इज़ रिक्वायर्ड। प्रीवियस में क्या था, हम उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक कनेक्शन गिवन है
उसने इतना डेड लोड और इतना लाइव लोड उसने रेजिस्ट करना है। आपने ये बताना है कि अगर हम E70X इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो उसकी टोटल लेंथ हम कितनी यूज़ करेंगे, हमें कितनी चाहिए उसकी लेंथ, कम से कम मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उस वेल्ड की ताकि इतना लोड बर्दाश्त कर सके। और उसने हमें ये भी फिक्स कर दिया कि हाँ जो फिलेट की जो विड्थ है दैट इज़ 1/4 इंचेस। अज्यूम दैट बोथ द कनेक्टेड पार्ट्स आर 3/8 इंचेस। जो दोनों प्लेट्स यूज़ हो रही हैं उनकी थिकनेस कितनी है, 3/8 इंचेस है। तो थिकनेस दोनों की सेम है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आप सबसे पहले तो अल्टीमेट लोड फाइंड कर लें फॉर द LRFD 1.2 डेड 1.6 लाइफ। तो ये आपके पास अल्टीमेट लोड फॉर द LRFD हम फैक्टर लोड निकालते हैं, फॉर द ASD हम सिर्फ डेड प्लस लाइफ कर देते होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले ऑब्वियसली आपने फाइंड आउट करनी है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर इंच यूज़ करनी है। फिर आपने शेयर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल यूज़ करना फाइंड करना, और शेयर रप्चर स्ट्रेंथ आपने मेटल फाइंड करनी है। ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, जो इनमें से कम वाली स्ट्रेंथ होगी वो हम कंसिडर करेंगे। अब वो फार्मूला क्या था हमारे पास, ये फार्मूला था, अगर मैं प्रीवियस दिखा सकूँ, या अब इसने इधर वैल्यू डायरेक्टली निकाली है, मैं भी आपको बता भी दूंगा, ठीक है। आपको कितनी गिवन है, विड्थ ऑफ द वेल्ड कितनी है, 1/4 इंचेस। इस चीज़ को ख्याल रखना है कि 1/4, ठीक है, ये आपके पास विड्थ ऑफ द वेल्ड है। अब आपके पास जो फार्मूला था, अगर उस फार्मूला की तरफ जाएं पिछली स्लाइड में, तो हमारे पास जो फार्मूला फाइंड करने का था वो क्या था, इट वाज ये फार्मूला था। हम जैसे यूज़ कर रहे थे कि आपने क्या करना था, 0.707 W मतलब विड्थ ऑफ द वेल्ड जो हमें 1/4 गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना था, वेल्ड स्ट्रेंथ कितनी यूज़ करनी है, ठीक है, और फिर आप उसको फर्दर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.707 W FW और उसके बाद स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 था, ठीक है। अब इसमें से अगर इन सब को इकट्ठा करके लिख दें, 0.75 भी अगर मैं इधर ही लिख दूँ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, अगर एक फार्मूला मैं अगर इसको इकट्ठा लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, 0.75, ठीक है। फिर ये 0.707, ठीक है, ये आपके पास लिखना चाहूँ। उसके बाद विड्थ ऑफ द वेल्ड, ठीक है, और FW फर्दर उसको मैं क्या लिख देता हूँ, अगर FW को मैं ब्रेक डाउन कर दूँ, ये इसी के सामने अगर मैं लिखता जा रहा हूँ तो FW क्या हो जाएगा, 0.6, ठीक है। अगर E70X इलेक्ट्रोड में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। अब इनमें से मुझे क्या 0.75 भी पता है, मुझे 0.707 भी पता है, मुझे विड्थ को अभी मैं ऐसे रहने, विड्थ वेरी कर सकते हैं, कुछ भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। 0.6 भी पता है और 70 भी पता है, ठीक है। अगर मैं इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.75 इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 70, ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और उसको जब मैं मल्टीप्लाई बाय विड्थ करूँगा तो मेरे पास ये टोटल डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। अब इसने भी कुछ ऐसा ही किया, अगर इधर देखें तो इसने वैल्यू ये डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर लिया। इसने ये किया कि ये जो 1.392 वैल्यू ये कैसे आई, अगर मैं कहूँ सबसे पहले मेरे पास क्या था 0.75, तो इसने क्या किया, सबसे पहले 0.75, अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, चलें 0.75 इसने लिखा, ठीक है जी। उसके बाद इसने 0.707 जो था उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया जी आपके पास। उसके अलावा आपके पास क्या था, W। अब W क्या है, W इज़ 1/4। 1/4 को अगर आपने लिखना चाह रहा हूँ, इसने लिखा 4/16, तो अगर आप ये लिखो कि 4/16 लिख दो, ठीक है, अगर आप 4/16 लिख दो किसी तरीके से, तो आपका वो क्या बन जाएगा, 1/16 ही 1/4 ही बनेगा ना ये। तो उसने 1/4 को क्या लिख दिया, 4/16 इस तरीके से, तो आपके पास ये आ जाएगा। वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इट्स नो बिग डील कि आप नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली बेशक 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये इतना कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली बेशक 1/4 से कर दिया। लेकिन इसने क्या किया ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। तो इधर इसने 4 अलग कर दिया, ठीक है, और उसने ये लिख दिया, मैं ये कह देता हूँ कि इसने ऐसे लिखा हुआ 4/16, सही है, ये आ जाएगा 0.75 0.707 मल्टीप्लाई बाय 4/16। और उसके बाद आ जाता था FW ये E60 के लिए, E70 के लिए कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 70, ठीक है, जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 और फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसमें इसने कौन कौन सी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, 0.75 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.707, अच्छा उसके बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70 और उसको डिवाइड कर दिया 16 से, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। जब ये इसने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लिया, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 16, तो इन सब को मिला के आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1.392,
ठीक है, 1.392 उसके पास आ जाएगी। उसके बाद उसने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। 416 को ये लिख रहा था कि 4 डिवाइड बाय 16, 16 डिवाइड हो गया था, तो इसने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। जब ये एक वैल्यू निकाली, जब उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बताने का मकसद खाली डिटेल में ये था कि इसने इसको लिखा कैसे है। 1/4 को इसने कंसिडर किया 4/16। आप बेशक 1/4 से भी डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, आप उस तरह भी करें तो आपके पास ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इतनी कोई बड़ी साइंस है नहीं। बट ये वैल्यू कैसे आई, इसका ये ब्रेक डाउन किया है। वही फार्मूला है, सिर्फ वही वैल्यूज पुट की है, सारा कुछ, ठीक है। इसने आप इधर डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिए, अगले प्रॉब्लम में भी ये डायरेक्टली ही लिखेगा। तो ये चेक कर लीजिएगा जी। तो डायरेक्टली हमारे पास ये वहाँ से वैल्यू आई, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ये आपके पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गई, ठीक है। उसके बाद शेयर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल आपने फाइंड करना था, और इसका फार्मूला क्या था, इसका हम स्ट्रेंथ रिडक्शन 5 और उसके बाद 0.6 FY इंटू टी, ठीक है। इसके लिए जब यील्ड स्ट्रेंथ के लिए इसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर था 1, तो इसने 1 इधर लिखा नहीं, डायरेक्टली लिख दिया 0.6। FY कितना है, जो आप टेंशन मेंबर यूज़ कर रहे हो, जो आपने टेंशन मेंबर यूज़ किया था, अगर प्रॉब्लम 1 में देखो तो वो A36 यूज़ किया था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 36 KSI। A36 स्टील का 36 KSI यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद उसकी थिकनेस दोनों मेंबर में से अज्यूम दैट दी बोथ द कनेक्टेड पार्ट्स, जो लेट्स से अगर ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, दोनों की थिकनेस कितनी है 3/8 इंच है, तो थिकनेस यहाँ से आगे आपके पास बेस मेटल की जो आ जाएगी शेयर यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी 8.1 किप्स। उसके बाद शेयर रप्चर स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या था, इसके साथ फार्मूला ये था कि इसी तरीके से 0.6 था, अगर मैं फार्मूला दिखा सकूँ 0.6 F अल्टीमेट इंटू टी, और उसके साथ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर था 5। तो बेसिकली फार्मूला क्या था, अगर मैं दिखा सकूँ तो फार्मूला था 5, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.6, अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम में देखें, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय F अल्टीमेट, और उसके बाद साथ टी था, ठीक है। अब इधर 5 की वैल्यू क्या थी 0.75 थी, ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में देख लीजिएगा 0.75। उसको जब उसने मल्टीप्लाई बाय 0.6 किया तो डायरेक्टली उसके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.45। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.6, उसने उसको डायरेक्टली वैल्यू लिख दी 0.45। F अल्टीमेट इंटू टी, ये वैल्यूज पुट की उसने। F अल्टीमेट A36 स्टील की यील्डिंग इतनी होती है, अल्टीमेट ये थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास शेयर रप्चर स्ट्रेंथ आ गई किसकी, बेस मेटल की। अब इनमें से सबसे कम कौन सी है, वेल्ड की शेयर स्ट्रेंथ इतनी है, उसके अलावा बेस मेटल की शेयर यील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, शेयर रप्चर स्ट्रेंथ इतनी है। तो इनमें से सबसे कम कौन सी है, ये वाली है, तो हम इसको चूज करेंगे, ठीक है जी। तो हमने जो हमारे पास वेल्ड स्ट्रेंथ पर इंच आ गई 5.568 इंच, ये हमारे पास पर इंच आ गई। अब हमें क्या गिवन है, हमें चूंकि टोटल लोड गिवन है, हमें उसने टोटल लोड बता दी कि भाई लोड इतना आ रहा है, तो उसको अगर 1 इंच इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो इतने लोड के लिए हमें लेंथ ऑफ कनेक्शन कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 39.6 टोटल रिक्वायर्ड डिवाइड बाय लोड पर यूनिट लेंथ, तो आपके पास 7.11 इंच। ये कहना चाह रहे हैं कि कम आप 7.11 इंचेस अगर लेंथ ऑफ द कनेक्शन रखेंगे, मतलब ये है कि अगर आप एक प्लेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरी वाली प्लेट से, ऐसे मैं अगर प्लेट बना दूँ, ठीक है, तो आपको कितनी कनेक्शन लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी 7.11। वो आप 7.11 सिर्फ एक साइड पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ज़्यादा सूटेबल ये होता है कि हम उसको 2 हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं। तो यूज़ 8 इंचेस, अब 7.11 लेंथ था, 7.11 को हमने थोड़ा हायर साइड पे ले गया कि हम थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड कर दें, तो 8 इंचेस कर दिया। और 8 इंचेस में हमने यूज़ 8 इंचेस टोटल एंड 4 इंच ऑन ईच साइड, दोनों साइडों पर, ऊपर भी 4 इंचेस नीचे भी 4 इंचेस, और ऐसे हमने करके कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरी प्लेट के साथ। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ द वेल्ड कनेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से डेड लोड प्लस लाइव लोड हमने किया, ये चीज़ें निकल आई। उसके बाद अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल्ड पर इंच ऑफ अ लेंथ, ठीक है। अब फिर वही फार्मूला है, बस सिंपली क्या है, इधर 1.392 था, इधर 0.9279। अब इनमें फ़र्क क्या हुआ, फिर वही चीज़ है, ठीक है, फार्मूला वही आ जाएगा। सिर्फ क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर था, ये जो 0.75 था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस केस के लिए, ठीक है। अब इस केस में 0.75 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर क्या होगा 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर ये वाला फार्मूला मैं इसके लिए ब्रेक डाउन करूँ तो उसका फार्मूला ये बनेगा कि हमारे पास बन जाएगा 0.707, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द वेल्ड कितनी थी 4/16, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.6 था जो हमारे पास, और उसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, जो 70 बन जाता था, ठीक है। और इसका जब स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, तो इसको मैं बजाय 0.75 से इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसके लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये वैल्यू जो 0.9279 वो कैसे आई, 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16। तो इन सब को जब करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9279,
ठीक है, और फिर आपने सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली फर्क क्या है, इधर 0.75 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 2 से डिवाइड हो रहा था, क्योंकि ASD मेथड है। ठीक है, और ये कहाँ से आया, वो ये अगर आप देख सकें तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये हो जाएगा आपके पास, ये फार्मूला था, ये इधर 0.75 इसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा था शेयर वेल्ड, और इधर इसके लिए डिवाइड हो रहा था। बाकी 0.707 W मतलब 4/16 से, और उसके बाद लेंथ तो हम अभी नहीं कर रहे, FW क्या था 0.6 × 5, तो ये इधर से फार्मूला आ रहा है। अब सो आपको समझ आ रहा होगा। एंड देन सिमिलरली आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आपके पास 3.712 किप से आ जाएगा। जब आ जाएगा अलाउबल शेयर यील्ड स्ट्रेंथ, तो अब इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला वही है 0.6 × FY × T। ठीक है, अब इसको भी ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड कर रहे थे, इसका अगर फार्मूला मैं बता दूं तो ये होता था 0.6, ठीक है, FY T। उधर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, इधर हम इसको डिवाइड करेंगे 1.5 से। ये कहाँ से आएगा, ये भी उसी फार्मूला में उसी पेज पे जाकर देखेंगे तो आ जाएगा। तो 0.6 को जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डायरेक्टली 0.4 उसने लिख दिया, इस तरीके से आ गया। और इस वाले फार्मूला के लिए क्या किया, फिर 0.4 FY पता है, T पता है, ये आ जाएगी स्ट्रेंथ। उसके अलावा ये वाला जो फार्मूला था इसके लिए क्या किया उसने, वही फार्मूला था 0.6, ठीक है, F अल्टीमेट आ जाएगा। ठीक है, जब रप्चर की बात करूं, और इस केस में डिवाइड करते थे 2 से डिवाइड करेंगे, हाउएवर इन दिस केस हम इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर डिवाइड हो रहे हैं उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव फैक्टर से। तो 0.6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 F अल्टीमेट और T की थिकनेस आ जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा शेयर रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस मेटल। तो तीनों स्ट्रेंथ आ गई कि वेल्ड की शेयर स्ट्रेंथ आ गई, उसके अलावा बेस मेटल की शेयर यील्ड स्ट्रेंथ और बेस मेटल की शेयर रप्चर स्ट्रेंथ। जो इनमें से कम है वो ये है 3.1712। तो आपके पास अब लोड इसके लिए कितना है, अलाउबल लोड 27, उसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको लेंथ ऑफ जो वेल्ड रिक्वायर्ड है वो 7.27 रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आपको ऑब्वियसली इसको राउंड ऑफ कर दोगे, यूज़ 8 इंचेस, और फिर ऑब्वियसली उसी तरीके से 4 ऑन ईच साइड हो जाएगा। तो ASD मेथड और LRFD मेथड दोनों से हमने निकाल के रख दिया कि टोटल हमें लेंथ ऑफ कनेक्शन रिक्वायर्ड कितनी है। ये भी एक एनालिसिस का ही प्रॉब्लम है कि एनालिसिस या डिज़ाइन कह सकते हैं कि हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड गिवन है, हमें उसने फिक्स कर दिया कि भाई विड्थ ऑफ द वेल्ड आपके पास ये गिवन है और आपके पास थिकनेस गिवन है, आप काइंडली बस रफ लेंथ ऑफ कनेक्शन में बता दें जो इस लोड को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जी एक प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे पास डिज़ाइन का, प्रॉपर डिज़ाइन का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ये कैसे है जी, आपको क्या गिवन है, एक प्लेट गिवन है, उसकी ये क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4, हाफ इंच उसकी थिकनेस है, 4 इंच इसकी विड्थ है। ठीक है, और वो A36 स्टील की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद इस यूज एज अ टेंशन मेंबर टू कैरी अ सर्विस डेड लोड इतना है, लाइव लोड इतना है। इट इज़ टू बी अटैच टू अ 3/8 इंच गजर प्लेट, एक प्लेट के साथ चूज है। प्रीवियस प्रॉब्लम में दोनों की थिकनेसेस सेम थी, इसमें गजर प्लेट की थिकनेस इतनी आ गई। अच्छा, डिज़ाइन है बेल्ट कनेक्शन, आपने बेल्ट कनेक्शन बेसिकली इसके लिए डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया जी, अब आप क्या करेंगे, आपके पास भी गिवन है, अब आपने फिर से उसी तरीके से अब आपने डिसाइड करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको गिवन था कि भाई फिर जो वेल्ड है उसकी विड्थ कितनी यूज़ करनी है, W आपको गिवन था, बट अब आपको W नहीं गिवन है, तो आप W कैसे चूज़ करोगे, W चूज़ करोगे जैसे प्रीवियस बताया कि इन दोनों में से देखो कि थिकनेस किसकी कम है, एक 3/8 इंच है, एक हाफ इंच है, तो ऑब्वियसली 3/8 इंच है। अब चले जाओगे डिज़ाइन टेबल में और देखोगे कि 3/8 इंच अगर थिकनेस हो तो उसके लिए मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब 3/8 के लिए अगर हम डिज़ाइन टेबल में जाके देखें, ठीक है, तो 3/8 1/4 से ज़्यादा होती है और इससे इस वाले से हाफ से कम होती है, तो इस पोर्शन में लाई करेगा। तो हमें मिनिमम फिलेट की जो विड्थ कितनी चाहिए होगी, 3/16। तो हम ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि विड्थ जो है वो जो फिलेट की इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, जिसको हम W से शो कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, 3/16 ऐसे पता चलेगा। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में गिवन था, इसमें हमने खुद से चूज़ किया, तो ये हो जाएगा कि आपने क्या किया, द बेस मेटल इज द। उसके अलावा क्या करना है, हाँ आपने एक और चीज़ यूज़ करनी है कि आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में गिवन था कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करें, E70 एक्स, बट अब आपको इलेक्ट्रोड भी नहीं गिवन, तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे, आप स्टील कौन सा यूज़ कर रहे हो, गजेट प्लेट और टेंशन मेंबर दोनों का यूज़ कर रहे हो, A36 की यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 60। ठीक है, 36 की SI, और अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 58 है। ठीक हो क्या, तो आप क्या करेंगे, जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अगर तो 60 से ज़्यादा है, तो अगर तो 60 ज़्यादा है तो फिर E80 यूज़ करूँगा, और अगर उससे कम है आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को देखना है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी 58 है, विच इज़ लेस देन 60।
विच इज़ लेस देन 60। तो अब आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, E60 एक्सेस भी यूज़ कर सकते हो, E70 भी यूज़ कर सकते हो, दोनों फिजिबल है। तो अब आपने क्या किया, ये देखो, सिंस द बेस मेटल इज ऑफ A36 स्टील, तो E70 एक्सेस इलेक्ट्रोड विल बी यूज। ठीक है, आपने ये कर दिया। उसके अलावा उसने आपको लिमिट नहीं किया कि भाई आप वेल्ड लेंथ की कनेक्शन, जो वेल्ड कनेक्शन की लेंथ कितनी रखें, उस पर आपको उसने फिक्स नहीं किया, बट आपने जो उसकी थिकनेस ऐसे डिसाइड कर ली, मैंने आपको जैसे आपको बताया कि मिनिमम थिकनेस है। तो अब आपने ये कर लिया, पैरामीटर सेट कर लिया, ट्राई अ 3/16 इंच फिलेट वेल्ड यूजिंग E70 एक्सेस इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब हमने इसी की मदद से आपने फिर से इसी की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। तो 1.392 कैसे आया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि वही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये देखिए 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.707 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ अब उसके साथ इधर क्या था 1/4 था। ठीक है, थिकनेस, और इसके लिए थिकनेस हमने 1/4 को हमने यूँ लिख लिया था कि 4/16 लिख लिया था, तो इस वजह से 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसके लिए 16 इधर भी है, इस वाले प्रॉब्लम के लिए भी देखिए, अगर ये हमारे पास है 3/16, ठीक है, तो ये 1.392 उसी तरीके से बना 0.75। ठीक है, उसके अलावा क्या मैं अगर इसको लिख दूं तो 0.707। ठीक है, ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर था। साथ में आ जाएगा W, और W क्या है 3/16, ये चीज़। उसके अलावा क्या था साथ में 0.6 इंटू जो FW था, FW किसके बराबर आ जाएगा, ये 0.6 इंटू 70। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70। अब ये सारे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 16, इन सब को किया तो आपके पास ये 1.392 आ गया। और जब आप इस 1.390 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपके पास 4.176 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली बेशक निकाल लो, बट सिर्फ समझाने का मकसद ये कि जो इसने किया हुआ है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी इस तरीके से आपके पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगी। उसके बाद शेयर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, वही इसके साथ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय FY। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टी कौन सी यूज़ करनी है, थिकनेस। प्रीवियस प्रॉब्लम में दोनों की थिकनेस सेम थी, बट इसमें कौन सी मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि जो इसमें से कम थिकनेस हो, तो कम थिकनेस किसकी है, इसकी है या इसकी है, गजर प्लेट की है, तो 3/8 हम यूज़ करेंगे, ये वाली जो कम वाली थिकनेस है। ठीक हो गया जी, तो आपके पास 0.6 FY इंटू टी, तो आपके पास ये आ जाएगा शेयर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। उसके बाद आ जाएगा शेयर रप्चर स्ट्रेंथ। शेयर रप्चर स्ट्रेंथ फिर वही 0.45 कैसे आया था, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.6 जब करेंगे, 0.75 इसका क्या है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे। ठीक है जी, वो फार्मूला गिवन है F अल्टीमेट, और आपके पास ये आ जाएगा, तो आपके पास ये 0.45 ऐसे बना, और ये आपके पास आ जाएगा। अब इनमें से कम कौन सी स्ट्रेंथ है, इनमें से सबसे कम स्ट्रेंथ है 4.176 है, एक ये है और एक ये है, तो कम कौन सी है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल्ड क्या हो जाएगी टोटल, इन तीनों में से कंपेरिजन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको अल्टीमेट लोड कितना निकालना है, 1.2 डेड 1.6 लाइव, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट लोड आ गया। अल्टीमेट लोड को हमने इस वाली से जो कम वाली है उससे डिवाइड किया, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कनेक्शन आ गई कि भाई कनेक्शन की लेंथ कितनी रखें 8.62। अब आपके पास ये तो हो गया, ठीक है जी, मिनिमम लेंथ, बट आपने ऑब्वियसली AISC से ये भी चेक कर लेना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ कनेक्शन मुझे कितनी रखनी है। तो आपको बताया हुआ था कि 4 टाइम विड्थ, ठीक है, जितनी विड्थ है उससे 4 टाइम रखनी चाहिए। तो विड्थ कितनी है 3/16, उससे करोगे तो 0.75, जबकि आपकी रिक्वायर्ड लेंथ कितनी आ रही है, आपकी रिक्वायर्ड लेंथ आ रही है 8.62 आ रही है, तो इस वजह से ओके है। अगर ये ज़्यादा हो जाता, लेट्स से कि हमें ये कह देता कि हमारे डिज़ाइन से आ रही है, हमें रिक्वायर्ड कितनी 8.62 और हमें मिनिमम लेंथ 9 इंच होती, तो फिर हम 9 इंच को यूज़ करते। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो हम फिर जो हमारे फार्मूला से आई है हम वही यूज़ करेंगे। सही हो गया, तो ये ओके है, मिनिमम इतनी है, हमें रिक्वायर्ड इतनी है, तो ओके भाई। तो अब आप 8.62 के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो 8.62 को पहले तो राउंड ऑफ कर दिया हायर साइड पे, तो इसका क्या बना देंगे 9 इंचेस। अब 9 इंचेस को इक्वली डिवाइड कर दो, तो यूज टू 4.5 इंचेस लॉन्ग वेल्ड्स फॉर अ टोटल लेंथ ऑफ 9 इंचेस। तो 4.5 ऊपर यूज़ कर लो और 4.5 ऐसे यूज़ कर लो। ठीक हो जाएगा। तो ये देखो अब लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी बन रही है 4.5, विच इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायर्ड। मिनिमम का तो चेक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी होनी चाहिए, एक ये चेक था और एक ये था कि द मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द ट्रांसवर्स बिटवीन देम और 4 इंच इन दिस केस। वो ये कहना चाह रहा था कि या तो इससे कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपकी कम से कम विड्थ ऑफ द प्लेट जितनी होनी चाहिए। तो विड्थ ऑफ द प्लेट आपको गिवन है, विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी है 4 इंचेस। ठीक है, फार्मूला से जो हमें एक फार्मूला से बता रहा है कि 4 टाइम विड्थ से हमें बता रहा है कितनी है 0.75 चाहिए आपको। ठीक है जी,
अगर ये मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, इस वाले पहले फार्मूला से ये है और इस वाले पैरामीटर से 4 इंचेस चाहिए, तो इनमें से कम देखो ये है और एक ये है, तो हम ये वाले को कंसिडर करेंगे कि भाई कम से कम इतनी लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करो 4 इंचेस, और जो हमने डिज़ाइन किया वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं हम 4.5 इंचेस, तो इससे ज़्यादा है तो मतलब ओके है, सही है, इससे कम से कम 4 इंच तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपको must be at least equal to the transverse distance between them or 4 inches. In this case the provided length of 4.5 inches will therefore be adequate. हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 4.5 इंचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कितने रिक्वायर्ड है, एक फार्मूला से 0.75 रिक्वायर्ड है, दूसरे से रिक्वायर्ड है 4 इंचेस। 4 इंचेस क्या है, इसकी विड्थ ऑफ द प्लेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और हमारे से ज़्यादा है, ओके हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया कि यूज़ 3/16 इंच फिलेट वेल्ड, ये अब आपने डिसाइड किया था, ये डिज़ाइन आपने किया है कि 3/16 यूज़ करें, कौन से इलेक्ट्रोड का E70XX यूज़ करेंगे विद द टोटल लेंथ ऑफ 9 इंचेस, कि उसकी टोटल कनेक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऊपर और नीचे वाले को मिला के कितनी होनी चाहिए 9 इंचेस एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, आपने फिगर भी साथ बनानी है। तो ये होता है, इस तरीके से आप वेल्ड कनेक्शन का डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं। इंतहाई सिंपल है, बोल्ट कनेक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सिंपली सिर्फ आपने लेंथ ऑफ द कनेक्शन बतानी है, उसके अलावा आप क्या करते हैं कि जो वेल्ड की स्ट्रेंथ बताते हैं और उसके अलावा वेल्ड की थिकनेस बताते हैं, यही 3 चीज़ें बताते हैं, उसकी अरेंजमेंट बता देते हैं ज़्यादा, ठीक है, उसका फिगर बना देते हैं, तो ये आपका वेल्ड कनेक्शन ऐसे डिज़ाइन हो जाता है। सिमिलरली आप जब ASD की बात करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये 1.392 प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड किया था, इसी तरीके से 0.9279 कैसे आया था, सिंपली मैंने आपको बताया था कि इधर 2 से डिवाइड हो रहा है, इधर 0.75 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, उस केस में प्रीवियस प्रॉब्लम में 4 था, इसमें 3 है, तो आपके पास ये एक आ जाएगी वेल्ड की स्ट्रेंथ। दूसरे फार्मूला से ये 0.4 आपको बताया था, कैसे आया था कि जब आप 0.6 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली इसने किया हुआ है, इससे स्ट्रेंथ ये आ रही है। और ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि 0.6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इससे ये स्ट्रेंथ आ रही है। अब ASD मेथड में एक ये स्ट्रेंथ है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, एक ये वाली स्ट्रेंथ है और एक ये वाली स्ट्रेंथ है, तो इनमें से कम कौन सी है 2.784। अब आप क्या करोगे, आपको लोड कितना आ रहा है, लोड कितना आ रहा है, अलाउबल लोड 24 किप्स, ठीक है, और आपकी स्ट्रेंथ आपने जो चूज़ की वो 2.74, तो इससे रिक्वायर्ड आपको लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी है 8.62। याद रखें LRFD में भी इतनी रिक्वायर्ड थी, इसके लिए भी इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अब आपको लेंथ ऑफ द कनेक्शन 8.62 है, आप उसको कितना प्रोवाइड कर रहे हो 9 कर दोगे, ठीक हो जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक कर लो कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने 4 टाइम बेड से रिक्वायर्ड थी, आपको 0.75, आपका 8.62 जो आप प्रोवाइड करोगे वो उससे ज़्यादा है, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया 9 इंचेस के बराबर, और आपको इस केस से भी 4 इंच है, तो 4 इंच फिर भी ज़्यादा है, प्रोवाइड लेंथ ऑफ द विल बी देयर फॉर बी एडिक्वेट। तो आपने उसी तरीके से वही डिज़ाइन है, सेम है एज पर ASDB 3/16 विद E70XX इलेक्ट्रोड विद द टोटल लेंथ ऑफ ये हो जाएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कनेक्शन का डिज़ाइन आपका ये छोटी सी लाइन में आ जाएगा, ठीक होगा, और उसके साथ आपने अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है आपका वेल्ड कनेक्शन का डिज़ाइन, ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। एंड देन अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द सेशन और यू कैन राइट इट ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जी इस वीक में इसको कंप्लीट कर लें ताकि, एंड दीज वर द मेन टॉपिक्स, हम पांचों जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, और किसी भी एक जो स्टील स्ट्रक्चर है इसमें यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम्स, देन हमारे पास कनेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक बोल्ट कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन। अगर